I will repeat this question again. Okay. Yesterday, the question that I have given to all of you was, we have been given revenue from operations 1,50,000. Total assets given to us were 1 lakh. Shareholder funds were 60,000. Non-current liabilities were 20,000 and non-current assets were 50,000. Now look at the question very carefully. The first thing that we have to calculate was the current ratio, correct? Now in the numerical, pay attention. How will we calculate CA, current assets? Now the total of assets was 1 lakh rupees and non-current assets were 50,000. So current assets, so it's very simple, CA minus CL. Okay, current assets, the formula for current assets is, current ratio is current assets upon current liabilities, correct? The first thing, current assets upon current liabilities. Now the point is, we have not been given current assets in the question. So how are we going to calculate the current assets? Total assets minus non-current assets. The formula for current assets in this question would be, current assets is equal to total assets minus non-current assets. Total assets minus non-current assets. So what is the value of current assets over here? The total assets amounts to rupees 1 lakh and non-current assets amounts to rupees 50,000, correct? So 1 minus 50 is 50,000, part 1. We have calculated the value of current assets. Now how to calculate current liabilities is a task. See, now we have been given in the liability side. See, this is the liability sides that I have already prepared. This is the liability side. Now in the liability side, we have been given this value as shareholders funds, correct? Then we have been given non-current liabilities. So non-current liabilities जो है, it could be debentures also, it could be short-term borrowings also. So this is the non-current liability. Now in the question, the total of assets is 1 lakh. This is the total of assets, correct? Now you know it very well that in accounts, assets are always is equal to liabilities. Assets are always is equal to liabilities. So 1 lakh of assets would be is equal to 1 lakh of liabilities. Now out of this 1 lakh, I am subtracting 60,000 as shareholders fund and I am subtracting 20,000 of non-current liabilities in order to get the current liabilities. And the current liabilities amount comes to be 50,000. Sorry, 20,000. 1 lakh minus 60 minus 20, that is 20,000. Now we will put in the equation. CA is 50,000 and CL I told you is 20,000. I showed you how to calculate the CL also. So this will be 2.5:1 current ratio. Clear to everyone? Clear, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And the other thing that you have to calculate was working capital turnover ratio. The formula for which was cost of revenue from operations divided by working capital, correct? And you know how to calculate working capital. The formula for calculating working capital is current assets minus current liabilities. Current assets minus current liabilities. So what is the amount of current assets? Current assets is rupees 50,000 as we have calculated and current liabilities is 20. So working capital comes out to be 30,000. Working capital is equal to CA was 50,000 and CL was 20,000. So working capital comes out to be 30,000, correct? Now we will put in the formula. Working capital turnover ratio is equal to revenue from operations, which is 1,50,000 upon current liabilities, which we have calculated as upon the working capital, which we have calculated as 30,000. So the answer is 5 times. We've got the answers. Correct? I have repeated the entire question. Is it correct? Understood by all? Yes, ma'am. Okay, beta. Now we are moving to another set of ratios which are known as profitability ratios. Profitability ratios. All right. Now we have already done final accounts.
What are the profits that we calculate in different stages in final accounts? Answer beta quickly. What is the first profit that we calculate in accounts, in final accounts? Ma'am, GP, GP. GP is known as gross profit. gross profit. Good. So the first profitability ratio is gross profit ratio. The first profitability ratio is gross profit ratio. And how is it calculated? Gross profit ratio is equal to gross profit upon revenue from operations multiplied by 100. All right. This is the first profitability ratio. Now you know it very well. How do we calculate revenue from operations? आप सभी को पता है हम लोग revenue from operations कैसे निकालते हैं? Gross profit also, if given in the question directly, then it is very good for you. If it is not given in the question directly, you know how to calculate the gross profit, right? We will do the calculation of trading account. See, we'll do the examples of this. Question number 1. These ratios are simple, beta. All right. We have been given revenue from operations. We have been given revenue from operations as rupees 6 lakhs. All right. And gross profit is 25% on cost. Read the line again and again. It is on cost. The profit is on cost and not on sales. So there's a twist in the question. All right. Now you have to calculate the gross profit ratio. Start doing it. Calculate the GP ratio. Start. Try attempting this question, beta. Now, the solution to this question would be, let the cost be, we'll assume the cost as 100. All right. Then profit is 25% on cost. And what is the cost? 100. So the profit would be 25, which means 25% of 100, right? The profit is 25. Now, if the profit is 25, what will be the sales? That will be cost plus profit. Simple maths. Then the sales would be 100 plus 25, which is 125. Clear to everyone till here? Now, another part of the question. When the cost is how much? When the sales is 125, the cost was 100, correct? We'll have to apply unitary method. When the sales is 1, the cost is 100 upon 125. And when the sales is rupees 6 lakhs. So what will be the cost? You have to calculate the cost. Now solve this part. You will get rupees 4,80,000. What is the cost? Rupees 4,80,000, correct? Now, we have already got the profit. Gross profit was 1,20,000, correct? How have we got this profit? See, selling price minus cost price. So, selling price was given in the question, revenue from operations as rupees 6 lakhs. 6 lakhs minus 4,80,000. So, gross profit is 1,20,000. Gross profit is rupees 1,20,000. Now GP ratio. GP ratio is equal to gross profit upon net sales or revenue from operations. I'll write the accounting term. Gross profit upon revenue from operations into 100. Into 100. Now, what is the amount of gross profit? We have already calculated. It is 1,20,000. Revenue from operations is rupees 6 lakhs into 100. Now, start solving the question.
What is the answer of gross profit? 20%. Have you all understood this question, beta? Otherwise, I'll repeat this question again. मैम रिपीट Ma'am. कर दीजिए. Okay, I'll repeat. देखो बेटा, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है, फॉर्मूला जीपी रेशियो का है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, करेक्ट? अब आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा क्या होता है, जो सेल प्रोसीड्स एक ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट, करेक्ट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन और द एंटरप्राइज इज अर्निंग. Now the revenue from operations in this question, जो हमको पैसा मिल रहा था माल बेच के, that was rupees 6 lakhs, ठीक है? और ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेशियो था बेटा, वो जो कंपनी का रेशियो था, that was on cost. कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैलकुलेशन था, that was done on cost. That was 25% on cost. So now you have to calculate the GP ratio. The formula is GP upon revenue from operations into 100. But the point is, we don't know the gross profit in this question. Now, how to calculate gross profit? Profit कैसे निकालना है हमको कि कितना प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट जो है यहाँ पे कॉस्ट का 25% है, तो हमको कॉस्ट को क्या लेट करना पड़ेगा बेटा? 100. हमने कॉस्ट को लेट किया है 100. देन प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट. तो 25% अगर हम 100 का करेंगे तो उसकी सॉल्विंग कैसे होगी बेटा? उसकी सॉल्विंग ऐसे होगी, 25 अपॉन 100, 25 upon 100 into 100. Of means into. So the profit is rupees 25. Now in maths we have already studied in junior classes that selling price हमेशा कैसे निकलता है, जब हम cost price में profit को जोड़ देंगे, then we'll arrive at selling price. तो आपने cost price को let किया था 100 और आपने profit जो calculate किया 100 पे, वो आया है rupees 25. So what is the actual sales that you have got? 125. 125 selling price कब था? जब आपका cost price 100 था. Now you will substitute in the unitary method. और यहाँ पे हम लोग LHS पे लेफ्ट हैंड साइड पे वो वैल्यू रखते हैं जहां पे हमको जो वैल्यू गिवन है, क्योंकि हमको इसमें सेल प्रोसीड्स गिवन थी, तो हमने इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे सेल्स को रखना है. गेटिंग माय पॉइंट? इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 100 यहाँ क्यों नहीं रखा, यहाँ 125 क्यों रखा. तो यहाँ पर हमने 125 इसीलिए सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि हमको सेल्स प्राइस गिवन है यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. तो जब हमारी सेल्स 125 है तब हमारा कॉस्ट 100 है. तो जब हमारी सेल्स 1 होगी, ये कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 125. Therefore, when sales are rupees 6 lakhs, तब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? हमने ऐसे इसको सब्स्टिट्यूट करके बेटा निकाल दिया, 100 अपॉन 125 इनटू दिस. तो हमारा ये आता है, कॉस्ट प्राइस है 4,80,000. तो द प्रोडक्ट इज कॉस्टिंग यू रुपीज 4,80,000 and you are selling it for 6 lakhs. So what is the profit percentage? 6 lakhs minus 4,80,000. The profit for the same product is 1,20,000. जब आपको प्रॉफिट आ गया, आपने क्या किया? आपने उसको न्यूमेरिकल में सब्स्टिट्यूट कर दिया. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. देन द आंसर केम आउट टू बी 20%. यू ओनली हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि जो प्रॉफिट एंटरप्राइज कमा रहा है, दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन सेल्स और दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट, करेक्ट? अगर तो यहाँ पर ये होता कि द प्रॉफिट जो है दैट इज 25% ऑफ सेल्स, द क्वेश्चन वुड हैव बीन वेरी इजी. हमने 6 लाख का 25% कर दिया होता और सीधे हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया होता. यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट है दैट इज 25% ऑन कॉस्ट एंड नॉट ऑन सेल्स. क्लियर बेटा, जिसने भी पूछा था? मैम. हाँ बेटा. मैम इसमें मैम लेट द कॉस्ट विल बी 100 वाली, अगर मैम इसके लिए x ले ले तो x ले लोगे तो क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सॉल्व वाला की उससे भी हो जाएगा. ओके मैम, बस मैम ये ज्यादा सही. थैंक यू मैम. हाँ. ओके मैम. Anybody else? और मैम Any doubt मतलब in हाई this? क्वेश्चन में, हाँ बेटा बोलो. मैम हाई क्वेश्चन 100 ही को लेके यूज करेंगे. हाँ हाँ 100 लेट द कॉस्ट विल बी 100. yes yes. ओके मैम, थैंक यू मैम. Okay बेटा. Anybody else? Any doubt? चलो let's proceed. नो मैम. हाँ बेटा. मैम इसके बाद कौन सा टॉपिक ये कब खत्म होगा ये अकाउंटिंग इक्वेशंस? ये तो हम लोग रेशियोज पढ़ रहे हैं बेटा. तो मैम इसके बाद टॉपिक कौन सा रहेगा? इसके बाद या तो डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे बेटा, या तो कैश फ्लो शुरू करेंगे. क्या हुआ, रेशियोज पढ़ के बोरिंग हो गया बेटा? नो मैम, बस पूछ रहे थे. बस इसके बाद हम लोग करेंगे, इधर डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे बेटा या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैश सेल्स 25% of total sales. Purchases rupees 6,90,000. Credit sales rupees 6 lakhs. Now this is a bit typical question. Try to do it. Excess of closing inventory over opening inventory. अमित ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करोगे बेटा, ओके? Is equal to 50,000. Okay, you have to calculate GP ratio. Calculate GP ratio. Start beta. All of you start. Now credit sales, I'll give you one hint. Credit sales 6 लाख है और कैश सेल्स क्या है बेटा? 25% ऑफ टोटल सेल्स. अमित अनम्यूट करो बेटा, साथ में करते हैं मिलके. अमित अनम्यूट योरसेल्फ. चलो आकृति आप अनम्यूट करो. We'll do it together. Nobody is ready to do the question with me. हाँ, Yes, ma'am. Devashish, chalo, let's start. Yes. Let the total Okay. sales be. X. हाँ, good. No, 100. Let it be X. Let it be 100. X. यहाँ तो निकल आएगा, sales वाला निकल आएगा. Let the total sales be X. Correct. ठीक है? Therefore, cash Yes, sales are. क्या दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में? कैश सेल्स 25% ऑफ Total sales. टोटल सेल्स, जो हमने X माना. तो कैश सेल्स कितना आया? Yes, ma'am. 25 upon 100 into X. ये X. आया X by 4. हमारा कैश सेल्स कितना आया बेटा? X by 4. करेक्ट? हाँ, yes, अब हम इक्वेशन में 25. क्या रखेंगे? टोटल सेल्स इज इक्वल टू किसके बराबर होंगी? कैश प्लस टोटल Cash plus profit. नहीं बेटा, टोटल सेल्स हो जाएगा यहाँ पर कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. Credit sales. इतना क्लियर हुआ? अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट पार्ट. Okay. इसमें हमको सब्स्टिट्यूट करके पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है. चलो, टोटल सेल्स आपने एक्स माना, कैश सेल्स है एक्स बाय 4 और क्रेडिट सेल्स आपको दिया हुआ है 6 ऑफ लैक्स. ठीक? सॉल्व दिस इक्वेशन. Yes. x is equal to x upon 4 plus LCM ले लेते हैं. We'll take the LCM. X 6 4s are 24. It will be 24 lakhs. 24. So 4x is equal to x plus 24 lakhs. 4x minus x is 3x is equal to 24 lakhs. X is equal to 8 lakhs. इतना क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? एंड हमने x Yes, क्या ma'am. अज्यूम किया था देवशीष बेटा? हमने x अज्यूम किया था टोटल सेल्स. तो हमारी टोटल Total सेल्स sales. कितनी आ गई बेटा? 8 lakhs. इररिस्पेक्टिव 8 उसमें से कैश कितनी है, क्रेडिट कितनी है. अब तो वो क्लियर ही हो गया. जब क्रेडिट 6 lakhs है, टोटल इतनी है, तो कैश हो गई 2 lakhs. ठीक है, हमको सेल्स का फिगर मिल Yes, गया ma'am. इसमें से, है ना? मेरे पास परचेजेस भी गिवन है. नाउ द ओनली थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज इन्वेंटरी. Excess of closing over opening inventory. Excess of closing over opening मतलब opening closing से कितनी ज्यादा है? 50,000. 50. तो इसका एक फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है. इसका एक फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, आप लोग लिख सकते हो. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, ऑल ऑफ यू राइट दिस फॉर्मूला. जब भी ऐसी चीज आएगी आप कैसे करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री. सीधे सीधे परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री. आपको और कुछ लगाना ही नहीं है जीपी के लिए. परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री. आप एक ये फॉर्मूला जरूर कॉपी कर लेना बेटा. चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग. ठीक है? परचेजेस हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. कितनी गिवन है? सॉरी,
मैम परचेजेस कॉस्ट ऑफ परचेजेस बोलिए कितनी पहले। गिवन है बेटा हमको? 6 लाख 6,90,000। 6,90,000, ठीक है। और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग और ओपनिंग है 50,000, है ना? यस मैम। तो यहाँ पर क्योंकि एक्सेस है तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री का वैसे फॉर्मूला होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। चेंज इन इन्वेंट्री का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। पर यहाँ पर एक्सेस है तो वो वाइसे वर्सा हो जाएगा क्योंकि क्लोजिंग ज्यादा है। सबको समझ आया? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा हमारा 6,40,000। 6,40,000। अब मैम प्रॉफिट, इन्वेंट्री का पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा, चेंज इन इन्वेंट्री का सिंपल मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल सी बात। लेकिन यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, मतलब क्लोजिंग वाला ज्यादा है ओपनिंग वाला कम है। सो दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी नेगेटिव। होगा कि नहीं होगा? आप चेक करो, जो मैंने यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग लिखा है विधि, जिसने भी हमसे पूछा, अगर ओपनिंग आपका 10 है, क्लोजिंग आपका 4 है, तो ये 6 आएगा। लेकिन वाइसे वर्सा अगर फिगर्स कर दो, ये 10 कर दो, ये 4 कर दो, तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा वो? यस मैम। ठीक है ना? तो इसीलिए हमने वो नेगेटिव में डायरेक्ट करके लिख दिया है। तो अब यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया है? हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारा आ गया 6,40,000। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपको सेल्स दी हुई है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, कौन हमको बताएगा प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा बेटा? बहुत सिंपल है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने 6,40,000 निकाला और टोटल सेल्स हमने 8 लाख निकाली है, तो प्रॉफिट क्या हुआ? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स वेरी सोल्ड। गुड, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 8 लाख माइनस 6,40,000। वेरी गुड। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। टोटल सेल्स हमको गिवन है 8 लाख माइनस 6,40,000. This will come out to be 1,60,000. Now substitute the formula and tell me what is the answer. जल्दी बताओ बेटा आंसर। मैम 20%। 1 मिनट। करेक्ट। बताओ क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया बेटा? जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस मैम प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपने मैम क्या रखा? 160। मैम 160 अपॉन and upon 8 lakh। गुड टोटल सेल्स। Yes मैम। क्लियर टू एवरीवन? चलो नेक्स्ट, आई विल शेयर ऑल दी क्वेश्चंस बेटा। अभी भी मैं यही बोलूंगी, जिनको नहीं आ रहा है समझ में परेशान मत हो, just go through all the questions that we are doing in the classes. That's it, more than enough practice for you. Don't panic कि बिल्कुल account stuff है. Once you will think this कि account stuff है, it will actually become tough for you. ठीक है? परेशान नहीं हो, छोटे छोटे डाउट्स जितने भी है बेटा पेन डाउन करके रखा करो। आस्क मी, सिली से सिली चीज पूछो कि मैम इसमें ये क्यों आया है, हमको नहीं आता, परसेंटेज निकालना नहीं आता, आस्क मी व्हाटएवर यू कैन आस्क, जस्ट यूटिलाइज योर टाइम। एक तरह से कोविड नेगेटिव है, करेक्ट, कि वी आर नॉट मीटिंग फेस टू फेस, बट एक तरफ से इसको आप पॉजिटिव भी लो, यू आर गेटिंग एम्पल ऑफ टाइम टू स्टडी and you're doing your master's course, so put in all your efforts and ask, at least for accounts you can ask me anything, whatever you want, anytime you can send me any doubt on my WhatsApp. If I'll get time, I'll for sure solve it and get back to you. Okay बेटा? आगे आपको जाना है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर की अकाउंट्स पूरी क्लियर करके जानी है, ताकि आपको सेकंड सेमेस्टर में जो भी पढ़ाए you should be very well confident and clear कि हमको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे टर्म्स आते हैं। हाँ बोलो बेटा मिताली। मैं आपको पहले क्वेश्चन किया व्हाट्सएप पे। आज किया बेटा? नो मैं कल रात में किया था। चलो मैं देखती हूँ, उसको मैं सॉल्व करके आपको भेजूंगी बेटा। सॉल्विंग नहीं करनी, उसके पास पूरा था टोटल एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे।
जो हमने कल वाला क्वेश्चन दिया था, इसमें वही नहीं होता है। मैं अभी फिर से बताऊंगी उसको, ठीक है? अभी मैं बता रही हूँ, लेट मी डू दिस वन क्वेश्चन देन आई विल टेल यू दैट क्वेश्चन अगेन, ओके? ओके, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन बेटा। स्टार्ट, ट्राई दिस क्वेश्चन। हेरा हेल्प करोगी मेरी इस क्वेश्चन में बेटा? Yes, ma'am. चलो हेल्प करो। सबसे पहले मेरे को फॉर्मूला बताओ बेटा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। हेरा बताओ बेटा। Gross profit ratio is equals to total profit. ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम Revenue from profit. ऑपरेशंस। ओके, फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस हाँ। प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, ये होगा। क्लियर? अब इसमें क्या आपको बेटा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है? सीधे सीधे नहीं दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस जो है वो 25% अबव कॉस्ट है। अच्छा, कहीं ना कहीं Yes, यहाँ पर ma'am. हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है which is 8 times. So what was the formula for inventory turnover ratio? Can anybody tell me? वो दिया हुआ है, that means यहाँ पे कोई ना कोई क्लू निकलेगा। Cost of goods sold on Yes. average inventory. Very good मिताली। Inventory turnover ratio is cost of goods sold upon average inventory. Very good. देखो अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे मिताली बताओ? क्योंकि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वेरी गुड। एवरेज इन्वेंटरी निकाल लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंटरी तो हो जाएगी। COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी बेटा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। हाँ, तो 5 लाख प्लस 3 लाख 8 लाख, 8 लाख अपॉन 2 इज 4 लाख। कितना आया बेटा? 4 लाख। वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू, यू आर स्टडीइंग। नाउ 4 into 8 is 32 lakhs। 4 8s are 32 lakhs। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया बेटा? 32 lakhs। अब हमको एक सिंपल सी चीज बताओ, यहाँ पर बेटा जो सेलिंग प्राइस है वो लिखा हुआ है कि 25% अबव कॉस्ट है, लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कॉस्टिंग हमारी कितनी निकली है? ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये कॉस्टिंग की तो है। हाँ, 32 लाख। अब हम सीधे सीधे ग्रॉस प्रॉफिट क्या करेंगे? 25% करेंगे 32 लाख का। यस, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ 32 lakhs। ठीक है ना? अब 32 lakhs की 1/4 वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 lakhs की 1/4 वैल्यू हो जाएगी हमारी 8 लाख मैम। 8 lakhs। ठीक, अब हमको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकलेगा यहाँ पर हमारा? वो भाई टोटल हो गया ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 32 लाख कॉस्ट प्रॉफिट। हाँ, गुड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन cost of goods sold is equal to revenue from operation minus gross profit प्लस प्रॉफिट बेटा, प्लस प्रॉफिट। मैम आपने इधर एग्जांपल से फॉर्मूलाज में लिखा है प्रॉफिट माइनस 40 करेंगे लाख और हो लॉस। जाएगा। वो बेटा देखो वो दूसरी चीज है, आप लोग समझ नहीं रहे हो। अब ठीक है, तुमने फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है, मेरी बात सुनना ध्यान से मिताली। हाँ 40 लाख बेटा, बिल्कुल करेक्ट। हम एक ओनर को कितना पैसा मिलेगा माल बेच के? जो कॉस्टिंग आई है, कॉस्टिंग आपने हमको बताई मैम 32 लाख आई है, ठीक है ना? तो वो प्रॉफिट भी तो लेगा बेटा। उस फॉर्मूले को आज ध्यान से स्टडी करना, तुमको खुद ही रिलेशनशिप समझ में आ जाएगी कि वो किस वे में 20% आ पाया रहा है। था। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करो, जीपी रेशियो में सब्स्टिट्यूट करो बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया है 8 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 40 लाख। मेरा आंसर गलत आया होगा क्या बेटा? आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है मिताली।
मैम मेरा आंसर भी रॉन्ग आया होगा ना क्वेश्चन, अगर मैंने से कर रहा है तो। नहीं समझ आ रहा है। नहीं मैम आएगा। 20% आ रहा है। 20%। क्लियर? मैं इसीलिए पता इतनी स्लो जाती हूँ कि कोशिश करते हैं एक टर्न पे 1 या 2 रेशियो, उससे ज्यादा हम खुद नहीं पढ़ाते हैं। यू ऑल सी दैट। चलो एक क्वेश्चन और लिखिए। से यस। कोई नहीं बोल रहा यस। नोबडी Yes, वांट्स। ma'am. Yes, ma'am. You all will try this question. Now I will not do. I always say I will not do, but I start doing the question. Calculate gross profit. मैम कितना अब लिखा बेटा? आवाज आ रही है? बहुत ब्रेक कर रही है बेटा, बहुत। मैम जो आपने कराए थे क्वेश्चंस, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यही वाला फॉर्मूला लगाया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरा हाँ। आंसर वही आया है जो आपका आंसर आ रहा था। एक बार मेरे को तुम शेयर करना बेटा, ठीक है? क्लास के बाद यू सेंड मी व्हाटएवर यू आर सेइंग। ओके। हाँ, अभी ये क्वेश्चन कॉपी करो। आई हैव टू राइट मोर। रिटन ऑल दीज 4 इंफॉर्मेशंस। बेटा इतना लिख लिया? शैल आई टर्न द पेज? चलो आई राइट ओवर Yes, ma'am. द लास्ट इंफॉर्मेशन। आई एम राइटिंग इट ऑन द टॉप। Question is finished. This is the entire information given to you in the question. Cash sales 25% of net sales. Average inventory 1,60,000. Inventory turnover ratio is 8 times. Average trade receivables is 20 lakhs. 2 lakhs, sorry. And trade receivables turnover ratio is 6 times. चलो ट्राई करो बेटा ये क्वेश्चन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमको दिया हुआ है और एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है। इससे क्या निकल आ जाएगा हमारा? कॉस्ट ऑफ Good sold. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया? 1,60,000 into 8। पहली इंफॉर्मेशन 1,80,000. करेक्ट। 1 लाख नहीं, 12,80,000 करेक्ट। 12 lakh. हाँ, गुड गुड 12 गुड। lakh. अब उसके बाद हमने आपको एक ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला बताया था। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या बताया था बेटा? व्हाट वाज डीटीआर? एवरेज। एवरेज क्या था उसका फॉर्मूला? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स था ना? डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया Yes, था ma'am. बेटा? हाँ, डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्रेडिट सेल्स का फॉर्मूला निकालो। यहां से कितनी क्रेडिट सेल्स आ रही है जल्दी बताओ? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आया? 12 lakh, ma'am. 12 lakhs। 12 lakhs हमारी आ गई क्रेडिट सेल्स। अब आपको ऊपर इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? कैश सेल्स क्या है? कैश सेल्स आर 25% ऑफ नेट सेल्स। कैसे निकलेगा बताओ? ट्राई करो। मैंने इतनी सारी हिंट्स दे दी है, 3 हिंट्स दी है।
once the meeting ends, please rejoin the session. 1 minute 30 seconds are left. बताओ बेटा, जल्दी बताओ. देखो, सबसे पहला पार्ट आपको क्या सॉल्व करना है बेटा? सबसे पहले आपको लगाना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो is equal to cost of goods sold upon average inventory. First thing, ठीक? तो ये आपको गिवन था क्वेश्चन में. कितना गिवन है क्वेश्चन में? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 is equal to x upon 1,60,000. x is equal to 12,80,000, which was cost of goods sold. पहली चीज, cost of goods sold. All right. Now next, part 2. Debtors turnover ratio or trade receivables turnover ratio. Trade receivables turnover ratio is equal to credit sales upon average. राइट? अब हमको इसमें कितना दिया हुआ है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 2 लाख और 6.